Once again, I welcome to my channel RM Classroom, and I also welcome in the course Transportation Engineering. So, in the last lecture, I have discussed about the design of pavement, and in design of pavement, I have discussed what is the different types of pavement and what is the difference between the flexible and rigid pavement. Then I have discussed the standard design parameters for the pavement, that is what is standard axle load, then vertical stresses at any depth Z, and then I have discussed what is equivalent single wheel load and how it will be computed. So and also I have discussed the number of repetition load or MacLeod's formula. So design parameters, in design parameters I have already discussed what is standard axle load. Second one I have discussed, that is vertical stress at any depth Z, equivalent single wheel load ESWL, and repetition of load. Now I am going to discuss the fifth one, that is rigidity factor. So these things we have already discussed in the last lecture. So what is rigidity factor? So rigidity factor is the ratio of contact pressure to the tire pressure. So next heading is rigidity factor. It is defined as the ratio of contact pressure to tire pressure. So rigidity factor can be written as contact pressure to the tire pressure. The value of rigidity factor can be equal to 1, can be greater than 1 or less than 1. That depends on the value of contact pressure and tire pressure. If the value of contact pressure is greater than 7 kg per centimeter square and the value of tire pressure is less than 7 kg per centimeter square, in that case the value of rigidity factor greater than or exceeds unity. If the contact pressure is exactly equal to the tire pressure, then at that times the rigidity factor will be equal to unity, and if contact pressure is less than 7 kg per centimeter square, in that case rigidity factor less than unity. So at low tire pressure the contact pressure is high, and in that case the wall of the tire in that situation will be in compression, and in the opposite at high tire pressure, or we can say that at low contact pressure the walls are under the tension. So here that things I have written that at low tire pressure, or we can say the contact pressure is high, in that case walls are under compression, and at high tire pressure, or we can say that contact pressure is low, walls are under tension. If I write the value of rigidity factor for different value of contact pressure and contact pressure, tire pressure. So the value of rigidity factor is equal to 1 if contact pressure is 7 kg per centimeter square and tire pressure is also 7 kg per centimeter square.
This value is greater than unity if contact pressure is greater than 7 kg per centimeter square, and this value is less than 7 kg per centimeter square. Or we can write this value is less than unity when this value contact pressure is less than 7 kg per centimeter square and this value is greater than 7 kg per centimeter square. So this is the things about the rigidity factor. Now I am going to discuss the design of flexible pavement. Firstly, I will discuss the design of flexible pavement, then design of rigid pavement. So design of flexible pavement. There are three methods to design the flexible pavement. Right. So one method is called empirical method. Empirical method. Second one is called semi-empirical method. And the third one is theoretical method. What is empirical formula? So based on this formula is based on properties, based on not properties, based on physical properties, and strength parameter. In empirical method, I will discuss what is group index method, group index GI method, California bearing ratio method, or also called CBR method, and California resistance value method. So these three methods will lies in the empirical method. Similarly, in semi-empirical method, so what is semi-empirical? So this type of method based on stress strain relation and experience. What are the semi-empirical methods? So types of semi-empirical method I will discuss, that is triaxial test method. Triaxial test method. Now the theoretical method. So these are the based on mathematical computation. In this part, I will discuss the Burmeister elastic layer theory. So these are the classification of the flexible pavement. So there are three types of design methods: empirical methods, semi-empirical, or we can say semi-theoretical methods, and the theoretical methods. Empirical method, as I told you, that based on the physical property and strength parameters. Semi-empirical methods based on the stress-strain relation and experience, and theoretical method based on the mathematical computation. In empirical method, I will discuss what is group index method, CBR method, California bearing ratio method, and California resistance value method. In semi-empirical, I will discuss what is triaxial test method, and the theoretical method I will discuss what is Burmeister elastic layer theory. So today I will discuss firstly I will discuss the empirical method, means what is group index method. So here, first method of design of flexible pavement,
first method I am going to discuss, that is group index method, GI method. So group index method, in this method generally we compute the group index value of the soil subgrade, and on the basis of group index, firstly we interpret or correlate this group index value with the total thickness of the flexible pavement. So group index value is generally lies in between 0 to 20, including 0 and 20. Lower the value of group index, better will be the quality of the soil subgrade, and higher the value of group index, poorer will be the quality of the soil subgrade. So we can write group index can be computed as, so group index expression can be computed as, that is 0.2a plus 0.005 AC plus 0.01 BD. Firstly, we have to compute the group index of the soil subgrade, where A is equal to percentage finer minus 35, and this value should not be greater than 40. Similarly, B is equal to P minus 15, its value also should not exceed 40. C is the another constant, that is liquid limit minus 20, liquid limit minus 20, its value also not greater than 20, and D is the plasticity index minus 10, and this value should not greater than 20. So here the A value is P minus 35, where P is the percentage finer, और इसकी वैल्यू को हम लोग 40 से ज्यादा नहीं रखेंगे. अगर 40 से ज्यादा आया तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर देना है 40 पे. B की वैल्यू जो है P minus 15, where P is once again percentage finer, and C is the liquid limit minus 40. Sorry, it is 40, not 20. It is 40. I'm very sorry. So it is WL minus 40, and IP minus 10 is the D value. Where if I write the notation, so P is the percentage finer, P is percentage finer, WL is the liquid limit in percentage, and IP can be written as difference between liquid limit minus plastic limit, that is called plasticity index. So the value of group index lies in between 0 to 20. Lesser value of group index indicates better quality of soil subgrade. Similarly, higher value of group index will indicate poor quality of soil subgrade. Once we have computed the value of group index, then this group index is interrelated with the thickness of the pavement. So generally in the design of flexible pavement, as I told you, there are at the bottom there is a soil subgrade. Above the soil subgrade there is a some thickness of soil subbase, and then above the subbase there is a base course, and above the base course there is a surface course. So for that, for the computation of the subbase course, directly we can compute the with the help of this group index, we can compute the thickness of the subbase. But for the base course and surface course, another property, things we have to know, that is the types of traffic. Which type of traffics are there, whether it is light, medium or heavy traffic. When the traffic is said to be light, when the number of vehicle per day is less than 50, then it is called light traffic. When the number of vehicles per day is in between 50 to 300, then it is called medium traffic.
and when it is said to be heavy traffic when the number of vehicle per day is greater than 300 vehicle per day. So here I have written that for the design of subways, this is the function of only group index, but for the design of base course and surface course, it is the function of group index as well as the types of traffic exist. So let us take one question. With the help of that question, we can easily understand this method. So a soil subgrade has following data: percentage finer passing through 75 micron CV is 60%, liquid limit is 45%, plastic limit is 20%. Find out the thickness of pavement required above the soil subgrade, and this is the correlation given with the with group index and thickness of the pavement. So firstly we have to find the what is the exact value of the group index. So group index GI can be computed as 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. So what is the value of A? So A can be computed as P minus 35. So what is percentage finer? So percentage finer is 60. So 60 minus 35. 60 minus 35. So its value is 25. So not exceed, it should not be exceed 40. ओके 40 से ज्यादा नहीं है. B की वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज फाइनर माइनस 15. So 60 minus 15. So this value is इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपका 45. बट हमें लेना जो है वो 40 ही लेना है, तो इसको हम लोग 40 के बराबर करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. उसी तरह सी जो है आपका लिक्विड लिमिट माइनस 40. सो लिक्विड लिमिट कितनी है क्वेश्चन में? लिक्विड लिमिट जो है आपका दैट इज 45%. सो 45 माइनस 40. सो 5. वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20. ओके ये भी सही है. डी जो है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. सो 45 माइनस 20 मीन्स 25. So 25 minus 10. 25 minus 10. So it is value is 15. Should not be greater than 20. Okay. So यहाँ से हम लोग अब ग्रुप इंडेक्स निकाल लेंगे. तो ग्रुप इंडेक्स क्या हो जाएगी? 0.2 into A. A की वैल्यू है 25 प्लस 0.005 AC. तो A की वैल्यू है आपका 25 और C की वैल्यू जो है वो 5 प्लस 0.01 into B. B की वैल्यू जो है आपका 40 इंटू डी. डी जो है आपका 15. एक चीज का बस ध्यान रखना है कि लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि बी की वैल्यू जो है वो 45 है, लेकिन मैंने बोला कि ये वैल्यू जो है 40 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इसे हमने लिमिट कर दिया है 40 पे. आप बी के वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही थी 45, लेकिन हमने लिया है 40 बिकॉज इस मेथड में बोला ही जाता है कि जो ये कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यू का एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है. So, अगर मैं कंप्यूट करूं इसे तो 0.2 इंटू ए प्लस 0.005 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 0.01 इंटू 40 इंटू 50. तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 11.63 11.625. ये आपकी ग्रुप इंडेक्स आई है. अब हमें थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालना है. तो हमें जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 10 थी तो थिकनेस ऑफ द पेवमेंट 60 है, और जब 15 है तो 80 है. तो इसके बीच में हमें इंटरपोलेट करना होगा. सो व्हेन ग्रुप इंडेक्स और थिकनेस ऑफ पेवमेंट इन सेंटीमीटर. तो जब ग्रुप इंडेक्स 10 थी और जब 15 है, और हमें जो निकालना है वो कितने पे? 11.625 पे. सो 11.625 पे. तो 10 पे जो है वैल्यू जो है थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज 60 सेंटीमीटर. सो 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो है 80 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ द पेवमेंट करस्पॉन्डिंग टू. सो द थिकनेस ऑफ पेवमेंट at GI is equal to 11.625, that is equal to
60 plus 80 minus 60 divided by 15 minus 10 into 11.625 minus 10. तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 60 plus 20 into 20 into 11.625 minus 10 divided by 5. तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई 66.5 सेंटीमीटर। 66.5 सेंटीमीटर जो है आपका थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। So this is the thickness of the pavement computed by the GI method. Another method of the empirical method, that is California bearing ratio method. So California bearing ratio जो है जो निकाला जाता है वो soil के कोड जो है वो IS 2720 part 16 and the CBR value indicates the relative strength of the paving materials, means or we can say that the relative strength of the soil subgrade. This test, originally developed by the California Division of Highway, USA, evaluate the strength of soil subgrade for design of pavement thickness. So in the computation of the California bearing ratio method, firstly we have to find the CBR value, and once we have computed the value of CBR, then IRC suggested the formula to compute the thickness of pavement that depends on the wheel load, CBR value and tire pressure. So what are the various apparatus used in the California bearing ratio method? So generally we use the cylindrical mold, जिसकी डायमेंशन जो होगी, जिसकी डायमीटर जो होगी वो 150 mm और जो हाइट जो होगी वो 175 mm. उसी तरह एक डिटैचेबल कॉलर जो होगा वो उससे अटैच होगा, और फिर आपका जो है उसका बेस प्लेट होगा, बेस प्लेट पे जो है वो परफोरेशन बना होगा, और फिर हमें जो है वो स्पेशल डिस्क यूज करते हैं जिसकी डायमीटर जो होगी वो 148 mm और जो उसकी हाइट जो होगी वो 47.7 mm. सिमिलरली जो है वो हमें दो तरह के लोड को यूज करेंगे, एक सरचार्ज वेट और एक स्लॉटेड वेट, जिसकी हर की वेट जो होगी वो 2.5 kg होगी. एक प्लंजर जो है उस जिसको यूज किया जाता है, जिसे पेनिट्रेट कराया जाता है सॉइल में, सो वो प्लंजर की डायमीटर जो होगी वो 50 mm और हाइट जो होगी वो 100 mm. लोडिंग मशीन में जो है मोल्ड जो हमने सॉइल का स्पेसिमेन प्रिपेयर किया है उसको हम लोग लोडिंग मशीन पे पुट करेंगे और प्लंजर को पेनिट्रेट करेंगे एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट. सिमिलरली जो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल जो होगा, आपको दो तरह से मैं कॉम्पैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड आपको स्टैटिकली कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और डायनामिकली कॉम्पैक्ट कर सकते हैं. तो स्टैटिकली कॉम्पैक्ट में है डायरेक्टली आपने लोडिंग रखा लोडिंग मशीन से और उसे कॉम्पैक्ट किया. डायनामिकली कॉम्पैक्टेड कैसे कर सकते हैं? तो डायनामिकली कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग रैमर यूज करेंगे, वेदर इंडियन स्टैंडर्ड लाइट और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन. इंडियन स्टैंडर्ड लाइट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसकी वेट ऑफ हैमर जो होती है 2.6 kg, हाइट ऑफ फॉल 310 mm और नंबर ऑफ ब्लोज जो होगा वो जो वहां पे 25 था सॉइल के कॉम्पैक्शन में, यहाँ पे हम लोग 56 यूज करेंगे और नंबर ऑफ लेयर्स 3 होगा. सिमिलरली फॉर द डायनामिक कॉम्पैक्शन फॉर द आईएस हेवी कॉम्पैक्शन, वेट ऑफ हैमर जो होगा 4.9 kg, हाइट ऑफ फॉल जो होगा वो 450 mm, नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे 5 हो जाएगी और नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 56 ही रहेगी. तो जैसे हमने सॉइल स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद फिर सॉइल को हमने जो मशीन पे रखा और लोडिंग देना स्टार्ट किया और डिफरेंट पेनिट्रेशन पे हमने प्रूविंग, दो हमारे पास डायल गेज होते हैं, एक प्रूविंग रिंग डायल गेज और एक नॉर्मल डायल गेज. तो प्रूविंग रिंग डायल गेज से हम लोग लोड को नंबर ऑफ डिविजन्स कंप्यूट करेंगे और उससे टोटल लोड जो है वो हम लोग फॉर दी डिफरेंट पेनिट्रेशन पे हम लोग लोड को मेजर करेंगे. तो डिफरेंट पेनिट्रेशन पे जो है डिफरेंट लोड हमने जो है वो ऑब्जर्व कर लिया है और रिकॉर्ड कर लिया है और उससे एक कर्व खींचा जाता है, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन कर्व. उस लोड वर्सेस पेनिट्रेशन कर्व को हमने जैसे प्लॉट किया तो अगर उसकी जो कॉन्केविटी अगर जो है वो कॉन्वेक्स है देन इट इज ओके, लेकिन इनिशियल पार्ट अगर कॉन्केव है, कॉन्केव अपवर्ड, देन वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन. करेक्शन कहाँ करना है? जहां पे मैक्सिमम कर्वेचर है या उस पॉइंट से हमें इनिशियल एक टेंजेंट खींचना है, वो जो है
एक्स एक्सिस और सेटलमेंट और पेनिट्रेशन एक्सिस पे जहां पे कट करेगा दैट विल बी द करेक्टेड जीरो रीडिंग। सो जनरली जो सीबीआर जो है वो कंप्यूट किया जाता है दो पेनिट्रेशन वैल्यू पे 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पे। जो सीबीआर की वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ दिस टू, मतलब कि जनरली जो होता है इन जनरल सीबीआर वैल्यू computed at 2.5 mm penetration that will be greater than the 5 mm CBR computed at 5 mm penetration. But if the CBR value जो penetration 5 mm पे आई वो ज्यादा हो गया as compared to the CBR value computed at 2.5 mm, then you have to repeat the test. और रिपीट करने के बाद भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है, मींस कि वंस अगेन द सीबीआर वैल्यू कंप्यूटेड एट द 5 mm penetration is greater than 2.5 mm penetration, then maximum value of the CBR at 5 mm you have to adopt. ठीक है, तो इस तरह हम लोग करते हैं। सीबीआर निकालते कैसे? तो सीबीआर जो निकालते हैं कि मैंने मान लिया कि जैसे 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो टेस्ट का लोड आया है P1 है और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड आया है वो P2 आया है, तो लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड इनटू 100, दैट इज द सीबीआर वैल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन। अब ये जो लोड है उसको स्टैंडर्ड लोड जो है वो हमने मेजर कर लिया यहाँ से लैबोरेटरी से, और स्टैंडर्ड लोड एक ऐसा लोड होता है जहां पे सीबीआर की वैल्यू 100% होती है, और ये स्टैंडर्ड लोड जो है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे 1370 और 5 mm पेनिट्रेशन पे 2055 kg होता है। सिमिलरली जो है यूनिट लोड, मतलब कि हम लोग प्रेशर भी उसका निकाल सकते हैं। तो प्रेशर के टर्म में अगर सीबीआर वैल्यू निकाला जाए तो यूनिट लोड जो है या प्रेशर एट डिफरेंट पेनिट्रेशन और 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? कुछ भी नहीं, जो स्टैंडर्ड लोड है 1370 एट 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 2055 kg फॉर 5 mm पेनिट्रेशन, उस पे आपको एरिया ऑफ द प्लंजर से जो है प्लंजर का जो डायमीटर है उसका एरिया कंप्यूट कर ले और उससे डिवाइड कर लो, मींस π/4 इनटू डायमीटर जो है 50 mm, मतलब कि सेंटीमीटर में अगर चाहिए तो π/4 इनटू 5 का स्क्वायर। तो वहां से जो स्टैंडर्ड प्रेशर आएगा 2.5 mm पेनिट्रेशन पे दैट विल बी द 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर आएगा दैट विल बी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो एपरेटस के बारे में मैंने बोला कि एपरेटस क्या क्या है आपका। सो एपरेटस में जो है मोल्ड मोल्ड के बारे में मैंने लिखा कि मेटालिक सिलेंडर ऑफ 150 mm इंटरनल डायमीटर 175 mm हाइट प्रोवाइडेड विद अ डिटैचेबल कॉलर 50 mm इन हाइट। इट आल्सो हैज अ डिटैचेबल परफोरेटेड बेस प्लेट 10 mm थिकनेस। द परफोरेशन इन बेस प्लेट डोंट एक्सीड 1.5 mm डायमीटर। जो परफोरेशन है उसकी डायमीटर 1.5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है आपका स्पेसर डिस्क है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि स्पेसर डिस्क की जो डायमेंशन है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो स्पेसर डिस्क है इसकी जो डायमीटर जो होती है, डाया जो होती है दैट इज आपका 148 mm, और हाइट या बोल लिया जाए दैट इज इक्वल टू 47.7 mm। सरचार्ज वेट हम लोग यूज करते हैं, तो एनुलर वेट जो होता है मेटल का बना होता है, और स्लॉटेड वेट होता है जिसकी हर की वेट मैंने बताया कि 2.5 kg होगा। इसकी डायमीटर 147 mm एंड सेंट्रल होल दैट इज 53 mm इन डायमीटर। डायल गेज, दो तरह के डायल गेज हम लोग यूज करेंगे, दो तरह के, नॉर्मल डायल गेज और प्रूविंग रिंग डायल गेज। प्रूविंग रिंग डायल गेज और नॉर्मल डायल। प्रूविंग रिंग से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन मेजर करेंगे और उससे हम लोग लोड निकालेंगे, टोटल लोड, और नॉर्मल डायल गेज से हम लोग सेटलमेंट जो पेनिट्रेशन है उसको नोट करेंगे। दो तरह के आईएससी को यूज करेंगे, 4.75 mm एंड 20 mm। पेनिट्रेशन प्लंजर जिसको मैंने बताया था कि जिसकी डायमीटर जो होगी 50 mm और हाइट जो है वो 100 mm होगी। उसी तरह कॉम्पैक्शन रैमर, तो कॉम्पैक्शन रैमर में मैंने बोला कि दो तरह से यूज करेंगे, लाइट और हेवी। लाइट और हेवी कॉम्पैक्शन को यूज कर सकते हैं। प्रूविंग रिंग डायल गेज को यूज करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को यूज करेंगे। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं, अगर लाइट कॉम्पैक्शन और हेवी कॉम्पैक्शन जो मैंने बताया, तो लाइट कॉम्पैक्शन और हेवी कॉम्पैक्शन। लाइट कॉम्पैक्शन में जो होगा वेट ऑफ हैमर जो होगा, वेट ऑफ हैमर दैट इज इक्वल टू 2.6 kg। यहाँ पे वेट ऑफ हैमर जो होगा 4.9 kg। हाइट ऑफ फॉल जो होगा आपका लाइट कॉम्पैक्शन में दैट इज 310 mm और यहाँ पे 450 mm। उसी तरह नंबर ऑफ लेयर यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगी 5, और नंबर ऑफ ब्लोज
जो यहाँ पे दोगे आप दोनों में सेम होगा, दैट इज 56 और 56। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से 3 लेयर या 5 लेयर में, दैट डिपेंड्स ऑन द किस तरह का राइमर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये आपका जो है सिलेंड्रिकल मोल्ड है आपका, देखो ये कि इसी पे डिटैचेबल कॉलर है और ये आपका स्पेसर है, दिस इज द स्पेसर। और ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड है जिसकी डायमेंशन मैंने बताया था कि डायमीटर 150 mm और हाइट 175 mm। यहाँ पे भी मैंने दिखाया है आपका, ये आपका जो है एनुलर वेट है और ये आपका जो स्लॉटेड वेट है। इसकी जो मैंने डायमीटर को भी बताया था, ये आपका परफोरेशन है जिसकी डायमीटर मैंने बोला कि 1.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है आपका apparatus used है, दिस इज mold with detachable collar। ये आपका सरचार्ज, ये आपका जो है स्लॉटेड वेट और ये आपका सरचार्ज वेट है और ये आपका स्पेसर, ठीक है। तो दिस इज द जो है आपका इस तरह से किया जाएगा सीबीआर टेस्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लंजर है, ये सॉइल का सैंपल है, उसके ऊपर हमने सरचार्ज वेट को फिल कर दिया है और इसकी डायमेंशन मैंने पहले ही बताया। ये प्रूविंग रिंग से हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग रिंग से हम लोग जो है नंबर ऑफ डिवीजन कंप्यूट करके टोटल लोड जो है वो हम लोग मेजर करेंगे फॉर एट द रेट ऑफ डिफरेंट पेनिट्रेशन वैल्यू। प्लंजर का मैंने बताया दिया कि डायमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 100 mm। तो दिस इज द स्पेसिमेन है आपका, ये पेडेस्टल लोडिंग मशीन है और ये सॉइल सैंपल है और ये सरचार्ज वेट है। अब प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख ले तो प्रोसीजर में मैंने बताया कि सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल एंड देन टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, तो जनरली जो प्रीफर किया जाता है कि 2 स्पेसिमेन हम लोग बना दें। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन में जो है सबसे पहले तो वही कि हाँ हमने सॉइल को लिया और सॉइल में मिक्स किया वाटर और उसे कॉम्पैक्ट 2 तरह से कॉम्पैक्ट करेंगे, स्टैटिक और डायनामिक कॉम्पैक्शन। मैंने अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी बता दिया है। तो क्या करेंगे, डायनामिक जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं। तो डायनामिकली कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन में sieve the material through 20 mm IS sieve, take about 5.5 kg of granular soil in a mixing pan, add water in the soil at जहां पे हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और OMC जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिले। Mix together the soil and water uniformly, place the spacer disc in the mold, the hole should be on the bottom side. Pour the soil in the mold and compacted by either light compaction or heavy compaction. लाइट कॉम्पैक्शन, हेवी कॉम्पैक्शन यहाँ पे भी मैंने लिखा है, तो वही चीज है। वेट ऑफ हैमर जो होगा वो आपका 2.6 kg, हाइट ऑफ फॉल इसमें जो होगा वो 310 mm, नंबर ऑफ ब्लोज 3 एंड नंबर ऑफ ब्लोज 56, नंबर ऑफ लेयर 3। हेवी कॉम्पैक्शन में 4.9 kg, हाइट ऑफ फॉल 450 mm, नंबर ऑफ ब्लोज 5 और नंबर ऑफ ब्लोज जो होगा 56 और नंबर ऑफ लेयर 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्रैच द टॉप लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड सरफेस, एड मोर सॉइल एंड कॉम्पैक्ट इन सिमिलर फैशन, रिमूव द एक्सटेंशन कॉलर एंड ट्रिम द सॉइल, देन रिमूव द बेस प्लेट, स्पेसर डिस्क एंड फिल्टर पेपर एंड नोट डाउन द वेट ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन। जैसे हमने जो सॉइल का सैंपल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद क्या करना है, टेस्टिंग द स्पेसिमेन। उस मोल्ड को आपको प्लेस कर देना है। Place the mold containing specimen with base plate in position on the testing machine. Then place the annular weight of 2.5 kg on the top surface of soil or fix the proving ring assembly and penetration plunger on the loading machine. Bring the penetration plunger in contact with the soil surface and apply seating load so that the full contact between the soil and plunger is established. Place the rimer remaining surcharge weight, that is called slotted weight, उसको आपको प्लेस करना है और उसके बाद फिर से सेट द रीडिंग ऑफ डायल गेज टू 0। सारे डायल गेज जो है आपके प्रूविंग रिंग डायल गेज और नॉर्मल डायल गेज दोनों के रीडिंग को आपको 0 कर देना है। अप्लाइड लोड सो दैट द पेनिट्रेशन रेट 1.25 mm per minute जो मैंने बताया, और रिकॉर्ड द लोड एट पेनिट्रेशन ऑफ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10 and 12.5 mm। यहां तक आपको करना है, जब तक रिपीट करते रहना जब तक कि डायल गेज की रीडिंग बढ़ती जाए। जहां पे ये
फिर बैकवर्ड हो गया, डिक्रीज करने लगा, वहां पे हमें टेस्ट को स्टॉप कर देना है। इन केस द लोड रीडिंग स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिफोर 12.5 mm पेनिट्रेशन, रिकॉर्ड द मैक्सिमम लोड एंड द करस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन वैल्यू। तो उससे हमने लोड और पेनिट्रेशन वैल्यू को निकाल लिया। उसके बाद जैसे हमने ये परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आपको एक डाटा मिल गया लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का, उससे आप प्लॉट करो ग्राफ, प्लॉट द लोड पेनिट्रेशन कर्व विद द लोड ऑन द वाई एक्सिस एंड पेनिट्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस। समटाइम द इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व इज कॉन्केव, जैसा मैंने बताया कि अगर ये पूरा का पूरा कॉन्वेक्स है, इनिशियल पोर्शन कॉन्वेक्स है, देन इट इज ओके, नो करेक्शन इज अप्लाइड। बट समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, ये क्या होता है, इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड। So in that case we have to apply the correction। क्या करते हैं, draw a tangent at the point of maximum slope, the point where the tangent meets the x-axis, that will be the corrected zero reading of the penetration। हमने दिखाया भी है कर्व को कुछ इस तरह, अगर पहला कर्व होगा in this fashion then it is okay, no problem। आपका जो इनिशियल जो यही जीरो होगा, लेकिन अगर कुछ पोर्शन जो है वो आपका कनकेव अपवर्ड है, तो मैक्सिमम आपका स्लोप पे वहां पे एक टेंजेंट खींचना है, ये कटेगा तो ये आपका जीरो हो गया। तो आपका 2.5 भी है जो mm है, और 5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड मेजर करेंगे वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपने करेक्शन नहीं लगाया तो 2.5 की जगह पे जो आपने लोड लोगे वो 2.5 ना होके उससे कम होगा, 5 mm से भी कम होगा। तो वो चीज आपको अप्लाई ध्यान में रखना है। अब कैसे निकालेंगे CBR? सो मैंने बोल दिया कि लेट P1 एंड P2 बी द टेस्ट लोड for the penetration of 2.5 mm and 5 mm। आपने लैब में पेनिट्रेशन और टेस्ट लोड दैट इज P आपने रिकॉर्ड कर लिया है। 2.5 mm और 5 mm पे हम लोग पेनिट्रेशन CBR निकालते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो P1 और P2 है। तो यहां से CBR जो आप निकालोगे, CBR वैल्यू एट 2.5 mm दैट इज इक्वल टू P1 बाई स्टैंडर्ड लोड इनटू 100। अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड लोड क्या होता है, एक ऐसा लोड जहां पे CBR की वैल्यू 100% आएगी। जो स्टैंडर्ड लोड 2.5 mm के लिए जो होगा वो 1370, या हम प्रेशर के टर्म में भी इसे लिख सकते हैं। यहीं पे अगर मैंने बना दिया प्रेशर भी एक और कॉलम में, कि हम इससे प्रेशर भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो एरिया ऑफ द प्लंजर से हम डिवाइड कर दिए, एरिया ऑफ द प्लंजर मतलब कि π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। प्रेशर भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर स्मॉल p, और यहाँ पे हमने P1 और P2। So CBR can also be computed by CBR at 2.5 mm। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रेशर इंटू 100। सो मैंने बोला कि लोड जो होगा वो आपका जो होगा वो कितना होगा, 1370 होगा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए। उसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा वो 1370 डिवाइडेड बाई जो आपका π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसे अगर आप कंप्यूट करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी लगभग 70 kg/cm² आएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू जो होगी, स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड 1370 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 70 kg/cm²। सिमिलरली जो है CBR जो है वो 5 mm पे भी आपको निकालना है। तो CBR एट 5 mm दैट इज इक्वल टू P2 मतलब कि टेस्ट लोड एट 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड लोड इंटू 100। तो यहां से आपने CBR, या CBR जो है फिर प्रेशर के टर्म में अगर निकालना है तो प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हो। दैट इज इक्वल टू टेस्ट प्रेशर एट 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रेशर इंटू 100। तो इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब क्या लेंगे इसकी वैल्यू को, तो स्टैंडर्ड लोड मैंने बताया कि कितना होता है 2050। आपकी वैल्यू जो होती है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे स्टैंडर्ड लोड
at 5 mm penetration, at 5 mm penetration स्टैंडर्ड लोड जो होता है जहां पे आपकी क्या सीबीआर की वैल्यू जो होगी 100% होगी। ये कितनी होती है 2055 केजी। तो यहां से आप स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो भी निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2055 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहां से आपका ये वैल्यू आ जाएगा 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड लोड आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे 2.5 mm पे स्टैंडर्ड लोड कितनी होगी, 2.5 पे स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू जो होगी वो 1370 केजी होगी, और प्रेशर जो होगा वो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज प्लंजर का डायमेंशन हमें मालूम है। प्लंजर का डायमीटर जो है वो 50 mm और हाइट जो है वो 100 mm है, तो वहां से हमने प्रेशर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है आपको, या तो टेस्ट लोड देगा या तो टेस्ट प्रेशर देगा कि इतने प्रेशर इतने mm पेनिट्रेट होने के लिए प्लंजर ने इतना प्रेशर लगाया या इतना लोड लगाया, तो उससे आपको निकालना होगा। इन जनरल जो होगा सीबीआर की वैल्यू जो होगी, सीबीआर जो होगी मैक्सिमम ऑफ द सीबीआर 2.5 और 5 mm पे जो वैल्यू जो होगा, तो सीबीआर की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम ऑफ सीबीआर एट 2.5 mm और सीबीआर एट 5 mm, जो मैक्सिमम हो वो वैल्यू आपको लेना है। जनरली जो इन जनरल जो होता है सीबीआर जो होगा वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5 mm पेनिट्रेशन। मैंने पहले भी बोला है, अगर सीबीआर की वैल्यू 5 mm पेनिट्रेशन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू 2.5, देन रिपीट द टेस्ट। तो इस चीज को अगर पहले लिख देता हूं, अगर सीबीआर की वैल्यू जो है वो 2.5 पे ज्यादा है एज कंपेयर टू 5, सो द मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी टेकन एज द फॉर द डिजाइन पर्पस। बट अगर सीबीआर की वैल्यू 5 mm पे ज्यादा है एज कंपेयर टू 2.5 mm, देन वी हैव टू रिपीट द टेस्ट। और अगर सेम ट्रेंड फिर से आ गया, मतलब हमने रिपीट किया और फिर से सीबीआर की वैल्यू 5 mm पे ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू 2.5, देन द सीबीआर वैल्यू जो 5 mm पे आया है उसे अडॉप्ट कर लेना है फॉर द डिजाइन पर्पस। ये वैल्यू हमने कुछ लिया है, दैट इज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, और उसके करस्पॉन्डिंग जो सीबीआर की वैल्यू जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो हमने लिया है। फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल द वैल्यू ऑफ सीबीआर इन बिटवीन 40 to 80। फॉर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल its value should be 30 to 60%. For silty gravel it is 40 to 60%. For clay gravel it is 20 to 40%. For well graded sand it is 20 to 40%. For poorly graded sand it is 10 to 40%. For silty sand it is 10 to 40%. For clay sand it is 5 to 20%. Clay with silt with low compressibility and intermediate compressibility, its value less than 15. Clay with high compressibility, its value less than 15%. Silt with high compressibility, the CBR value less than 10%. For organic soil, its value is less than 5%. Once you have computed the value or you have decided the design CBR value, then thickness of pavement can be computed. So thickness of pavement, flexible pavement can be computed. So thickness of pavement can be computed by T is equal to root under P 1.75 by CBR in percentage minus 1 by P into pi to the power half. So this is the thickness of flexible pavement, where P is the axial load, total wheel load. P is the total wheel load. CBR तो मैंने बताया कि ये परसेंटेज में रखना है। P जो है आपका टायर प्रेशर, जिसको आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर रखोगे और इसे केजी में रखोगे तो थिकनेस जो आपका होगा, थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इन सेंटीमीटर में आपको मिलेगा। अगर आपको, लेकिन ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है इफ
CBR वैल्यू इज लेस देन 12% और इक्वल टू 12%, तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास total wheel load if capital P is not given, so we can write small p can be written as capital P by pi a square, or we can write capital P by P that is equal to pi a square. Replace this value in this equation, so you will get the thickness in such fashion: T is equal to square root of 1.75 divided by CBR in percentage minus a square, where a is the radius of contact area of the tire. तो ये भी फॉर्मूला जो है वैलिड फॉर CBR वैल्यू लेस देन 12%। तो यहाँ से हम लोग थिकनेस निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे फिर और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक CBR टेस्ट वाज कंडक्टेड ओवर द सॉइल सबग्रेड एंड फॉलोइंग रिजल्ट वाज फाउंड। ये पेनिट्रेशन है और ये लोड है। फॉलोइंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू यूज ओवर द सॉइल सबग्रेड: एक कॉम्पैक्टेड सॉइल जिसकी CBR की वैल्यू 6%, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल जिसकी CBR की वैल्यू 12%, वेल ग्रेडेड ग्रेवल जिसकी CBR की वैल्यू 60%, बिटुमिनस सरफेस की जिसकी थिकनेस जो है 4 सेंटीमीटर है। Design the pavement using CBR method if wheel load is 4100 kg and tire pressure is 7 kg per centimeter square। क्वेश्चन में जो है आपका व्हील लोड दिया हुआ है 4100 kg और स्मॉल p की वैल्यू दी हुई है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट जो होगा, टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p 1.75 डिवाइडेड बाई CBR in percentage minus 1 by P into pi to the power half। so सबसे पहले जो हमें निकालना होगा वो CBR की वैल्यू। तो CBR at 2.5 mm that is the load at test load at 5 mm, 2.5 mm penetration that is equal to 60 kg। so 60 divided by standard load is 1370 into 100। तो इसकी वैल्यू को अगर आप निकालोगे 60 by 1370, 60 डिवाइडेड बाई 1370 इंटू 100, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 4.38%। 4.38%। सिमिलरली CBR वैल्यू 5 mm पे निकाल लीजिए आप, पेनिट्रेशन पे 5 mm पेनिट्रेशन। सो टेस्ट लोड एट 5 mm पेनिट्रेशन इज 82 kg। सो 82 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड लोड 2055 इंटू 100, सो ये वैल्यू जो आ जाएगी 82 डिवाइडेड बाई 2055 इंटू 100, तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 3.99, मतलब 3.99 मतलब 4%। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि CBR की वैल्यू जो है, CBR की वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन CBR एट 5 mm पेनिट्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही डिजाइन CBR वैल्यू होगा। CBR जो एडॉप्टेड जो होगा दैट इज इक्वल टू 4.38%। अब इस CBR के करस्पॉन्डिंग आप सबसे पहले टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट और टोटल थिकनेस अबव द सॉइल सबग्रेड कैन बी कंप्यूटेड। सो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P, जो टोटल व्हील लोड है 4100 kg, 1.75 डिवाइडेड बाय CBR इन परसेंटेज। तो CBR कितना है 4.38, सो 4.38 माइनस 1 बाई P की वैल्यू 7 इंटू पाई टू दी पावर हाफ। टायर प्रेशर जो है वो आपको क्वेश्चन में 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो इससे टोटल थिकनेस आप जो है वो निकाल लोगे 4100 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई CBR 4.38 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 पाई टू दी पावर 0.5। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 38.1 सेंटीमीटर। थिकनेस जो आ गई 38.1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो टोटल थिकनेस जो है अबव द सॉइल सबग्रेड दैट इज इक्वल टू 38.1 सेंटीमीटर। तो टोटल थिकनेस जो है अबव द सॉइल सबग्रेड दैट इज इक्वल टू 38.1 सेंटीमीटर। सो हमने टोटल थिकनेस जो है वो पेवमेंट का निकाल लिया है, दैट इज
38.1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल थिकनेस मतलब अबव द सॉइल सबग्रेड जो है वो हमने निकाला 38.1 करस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटेड सीबीआर वैल्यू, ओवरऑल सीबीआर वैल्यू जो था। ठीक है, नाउ जो है हमें जो है थिकनेस जो निकालना है कि जो सॉइल सबग्रेड के ऊपर जो है वो कॉम्पैक्टेड अर्थ है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिर जो है सबसे ऊपर जो होगा वो अबव द सॉइल सबग्रेड दैट इज कॉम्पैक्टेड सॉइल, वो सीबीआर इज 6%। तो इस करस्पॉन्डिंग सीबीआर के करस्पॉन्डिंग हमें थिकनेस निकाल लेना है कि वो कितनी आ रही है। अब वो जो थिकनेस होगी तो टोटल माइनस दिस थिकनेस दैट विल बी द थिकनेस ओवर द कॉम्पैक्टेड सॉइल। सो हियर हमने वही चीज हमने निकाला है कि जो टोटल थिकनेस जो है रिक्वायर्ड ओवर द कॉम्पैक्टेड अर्थ जो होगा वो कितनी हो जाएगी, तो T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एंड 31.7। तो ये ओवर है, तो टोटल जो है वो हमारा 38.1 है, उसमें से अगर 31.77 को घटा दें तो दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द कॉम्पैक्टेड अर्थ। सो थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्टेड अर्थ कितना हो जाएगा, 38.1 माइनस 31.7 दैट इज 6.33 सेंटीमीटर। सिमिलरली थिकनेस रिक्वायर्ड ओवर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल वो कितनी हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने सीबीआर से निकाल लिया, दैट इज 4100 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 बाई पी पाई, तो ये 28.28 आ गई। तो ये थिकनेस जो है अबव द है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सो जो टोटल जो थिकनेस थी अबव द कॉम्पैक्टेड अर्थ उसमें से अगर मैं ये थिकनेस को घटा दूं तो दैट विल बी द थिकनेस ऑफ द पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सो 31.77 माइनस 20.28, so दैट इज 11.49 सेंटीमीटर जो होगा वो थिकनेस ऑफ पुअरली ग्रेडेड होगा। अब जो है जो जो सीबी जो उसके ऊपर जो है पुअरली ग्रेडेड के ऊपर है वो हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। आप देख सकते हो कि आपका जो है वेल ग्रेडेड ग्रेवल जिसकी सीबीआर की वैल्यू 60% है, इसकी थिकनेस कैसे निकाली जाए, तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट रिक्वायर्ड ओवर द वेल ग्रेडेड ग्रेवल कितनी हो जाएगी, सो जो थिकनेस ओवर द पुअरली ग्रेडेड है मतलब 20.28 और सरफेस कोर्स की थिकनेस दे दी है क्वेश्चन में कि वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर घटा दिया तो वो हमारा थिकनेस ऑफ द वेल ग्रेडेड ग्रेवल बच गया। सो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो थिकनेस है वो 16.28 है। सो दिस इज द लेआउट, इंडिविजुअल थिकनेस हमने निकाल लिया। पहले सॉइल सबग्रेड की जो सीबीआर थी, ये सीबीआर जो है हमने निकाला था वो कितना था 4.38%। सो 4.38%, 4.38%, इसके करस्पॉन्डिंग हमने थिकनेस अबव द सॉइल सबग्रेड निकाला दैट इज 38.1 सेंटीमीटर। फिर 6% के करस्पॉन्डिंग को थिकनेस निकाला, दैट थिकनेस विल गिव द टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट अबव द कॉम्पैक्टेड अर्थ, और उस कॉम्पैक्टेड अर्थ जो होगा ये वाली वैल्यू जो हमने निकाला फॉर दिस करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसमें से 38.1 में से इसको घटाया तो ये वाला थिकनेस हमें मिल गया कॉम्पैक्टेड अर्थ का। सिमिलरली फॉर द करस्पॉन्डिंग ऑफ 12% जो टोटल थिकनेस अबव द पुअरली ग्रेडेड मैंने निकाल लिया, और उसमें से जो ये वाली थिकनेस थी अबव द कॉम्पैक्टेड अर्थ उसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमें पुअरली ग्रेडेड का मिल गया। और उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर जो है वो सरफेस कोर्स का है, तो ये थिकनेस में से हमने 4 सेंटीमीटर घटा दिया तो हमें वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस प्रॉब्लम, सीबीआर से कैसे हम लोग मेथड से कैसे थिकनेस ऑफ द पेवमेंट निकालेंगे और इंडिविजुअल थिकनेस भी कैसे निकालेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।